न्याय ठोस देना चाहिए सरकार ने। आंधी बैठी सरकार तो एक के साथ में अतरी बड़ी सजा दे दे तो दूसरों हाथी को लगाओ। She sat on a jute cot on veranda of her dilapidated house in Bhateri village in Rajasthan, gazing at the backyard flooded in rains. The peeling walls, the rusting windows, and the weather-beaten interior of her house mirror how Bhavri Devi feels in her bones these days, like the autumn of an exhausted feminist. Through the 80s and 90s, Bhavri Devi's name was synonymous with the rise of a new, gritty brand of rural feminism and Rajasthan's long, hard battle against the age-old custom of child marriages. Her name also became a touchstone for a new leadership shift in the 90s feminist struggles from urban privileged class to rural marginalized groups. Today, the 70-year-old feisty feminist who wanted to transform rural Rajasthan and women's place in it helplessly watches her sons and daughters fight over her land and the money that she got after being gang raped for trying to stop the child marriage of a 9-month-old infant in 1992. कहीं बताओ यहाँ से खूब शादी हो तो मन तो लड़ाई लड़े वहाँ का नंगर सामने ही हो तो खूब शादी है तुम खूब बढ़िया पति जो लगी तो चौथी लागी मन्ने में लगो ना तुम्हारी बेटिया ने हमारी बहना ने सब न मिलो तो मैं कह रही थी जे वो करे चाहिए हिम्मत बहादुर लड़ जियो डर जियो मत मोटियारी पाछा पड़ जाओ तो कहीं लड़ता पा रात ने याद आ जाता तो आँख फटेगी फटे जैसे खूब रो कहीं करा भाई ऐसी ऐसी बातें खेचे आके बोरी देवी बने और कहीं लोश को बंदा लियो नाम कमा लियो लुगाया काई कर लियो तू काई बहादुरी कर ली तो ना काई मिल गई हीरो काई मिल गो तो ने हम चोट पहुंचा सके मतलब काई करूं सबकी सुनो तो काई करूं जितनी के सामने और बात ये ना जे मार पे लगी मारे मुंह को दियो खींच दियो तो बुसकाई अरे की आंख में लगी फोड़ गई कम दुख से कम सो बहुत ने के रीते मैडम कोई सुन बालो है ये देख लियो मोसू असी बुरी रीते बहुत भाई मैं या खयो भाई छू गुजरा की लुगाई मैं तो है ना पर तू बयान दे कोर्ट कचड़े हम चाल बयान दे मैं तो छू गुजरा की लुगाई 31 साल पहले इसी खेत में भवरी देवी और उनके पति मोहनलाल प्रजापत काम कर रहे थे जब 5 आदमियों ने उन पर हमला किया, उन्हें पीटा और भवरी देवी के साथ गैंगरेप किया। मैं जयपुर के भटेरी गांव के उस घर में हूँ जिस घर में देश के पिछले 3 दशक के रूरल फेमिनिज्म के सबसे बड़े चेहरे भवरी देवी ने अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ गुजारी हैं। वो आज भी इसी घर में रहती हैं और 31 साल बाद भी न्याय की बात करती हैं। साल 2020 में उन्होंने अपने जीवन साथी और अपने सबसे बड़े सपोर्टर अपने पति मोहनलाल प्रजापत को कैंसर की वजह से खो दिया। कुछ महीने पहले उन्हें खुद भी दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि भारत की उन तमाम महिलाओं के लिए न्याय की बात करती हैं जिनके साथ गलत हुआ लेकिन उन्हें सरकार, पुलिस और कोर्ट से जस्टिस नहीं मिला। भवरी देवी के 5 आरोपियों में से 4 अब नहीं रहे, लेकिन एक जिंदा है। भवरी देवी की अपील राजस्थान हाई कोर्ट में पिछले कई दशकों से पेंडिंग है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। Since 1992, her rescuer rescued life story has been inextricably tied to a 9-month-old girl. Bhavri tried hard to stop the wedding,
But the child was being married off to a 1-year-old boy anyway the same evening after the police and activists left. She paid heavily for her efforts. Bhavri Devi was gang raped in a reprisal attack by the bride's relatives 5 months later. Her rape case resulted in the landmark Vishakha Guidelines by the Supreme Court in 1997, a law that protects millions of Indian women from sexual harassment at workplace. What many have overlooked was how the 9-month-old girl child was grown up hating Bhavri Devi. The print traced for the first time the child bride, who is now 32-year-old Bai Devi. The two women have come face to face many times since, but have never spoken. They find themselves at two ends of a spectrum. Their encounters underline the classic dilemma of a rescuer feminist and a woman who refuses to call herself a victim. What tied the two women 3 decades ago now tells a tattered tale of unfinished feminist revolution. મારા સાથ બન ન કરેગા ન્યાય મત કરો પણ આમ औरतां तो न्याय देना चाहिए ने वहाँ का ताई लड़ रही थी मारे अकेली का ताई थोड़ी लड़ रही थी पूरी जनता का ताई लड़ी थी पूरे देश विदेश का ताई लड़ रही थी ये अत्रो अत्याचार है जो क्यों है रही हो ये अत्याचार ना रोक क्यों न सरकार. Bai was the 9th child in her Gujjar family in Bhateri. Her parents gave her a telling name, Galla, which means stop, enough. In school, she was named Manbhari, which means heavy heart. Later, after her marriage, she became Bai, which means just a girl. In 2008, when she was just 17, she began living with her husband in a village 40 kilometers away. Despite the massive fallout of her marriage on India's feminist movement and jurisprudence, Bai's life has largely remained unscrutinized and away from the public gaze. Like Bai, Bhavri Devi was herself a child bride. She was the eldest child in a family of Kumhars in Ravasa village of Jaipur. खबा का ही लाला पड़ रहा था जे फड़ाओ कौन सो मान हमारे पिताजी ये मारा ससुर ये थे जे गदा खरीद खल के हैं का बेच बजाओ था खल के माता था नहीं जयपुर का पहली जिन बेच बजाओ तो खरीद गाँव में जाई यहाँ राम भी बन गई जे ब्याह थार छोड़िए जा तो मैं दे दूँ और थार छोड़ हो जा तो आप सरी में ले ले जा भाई तू पढ़ना दीजिए मैं मार छोड़िए जा तो और थार छोड़ हो जा तो मैं पढ़ना दूँ अँ बात चीता करे जी पेट में जी फिर पासे मैगी छोरी और ये डेगो छोरो फिर कर दिया संबंध. Unlike Bai, Bhavri fought the traditions she was embedded in. It was a government policy that gave birth to India's iconic rural feminist. And it was Bai's marriage that became a rallying point in Bhavri's fight against patriarchy. અહીંયા કરી जी भाई माँ का ये परिचय आओ जी तो परिचय आई मैं गार कार्ड बजाओ सा मिस्टोलन में समझाया यहाँ करे भाई मैं तुम सुनो बन आई थी मैं सुनबो जानूंगी कौन कहीं हो कहते मैं नौकरी पे लगाऊंगी मैं काहे की नौकरी पे लगाऊंगा कहता ना हमेशा जिंदगी भर 200 रुपये में लगे तो मैं भाई आग लागो भाई 200 रुपये में लगा तो चली चला उन ट्रेनिंग दे गया जो का ना हो अजमेर प्रीतम जी के हाथ जोड़ दिया मैं तेता बड़ा भाई प्रीतम जी मन तो खंदा जी कौन चाहिए जी था कि नौकरी कहीं करूँगी नौकरी कर मैं तो खुरपाश पैदा कर खाऊँ कहीं जरूरत नहीं नौकरी का लाई लाओ जब आ जाती तो कहीं भी हमारी ज़िंदगी को पकड़े. In the early 80s, the Rajasthan government took it upon itself the difficult task of fighting age-old feudal practices to improve the lot of women. Rajasthan came up with an exclusive program for women's empowerment with the help of UNICEF. The government decided to nurture rural women leaders. The officers followed a selection criteria. The woman should be from the lowest socio-economic strata or with some influence in her community or one with empathy and no greed. Bhavri ticked all the boxes: empathy, clarity and status. At first, she told them she only knew how to work with a sickle on the farm, but it took some convincing. भंवरी कहती थी कि मैं नहीं आऊंगी मैं नहीं जा सकती
मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कौन जाऊँ जीजी, मैं कौन जाऊँ। और जब मैं आई जब मैंने कहा कि भंवरी हमने तो तेरे को चुन लिया है, हम तो तेरे को ले जाना चाहते हैं, तो कहती कि मैं तो आपको देख के मैं तो कुछ कह ही नहीं पाई, मुझे लगा मैं जाऊंगी। अब भंवरी देवी वैसे वेरी हार्ड वर्कर लगती थी, शी वॉज वेरी हार्ड वर्कर, क्योंकि ये मिट्टी का काम करती थी और इसकी जो मतलब बॉडीली जो इसका जो वॉक वगैरह है ना, मतलब जो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखता है। भंवरी शुरू से स्पष्टवादी है, उसकी स्पष्टवादिता काफ़ी जोरदार है। इन गर्मी में मैं उसके घर गई, मान लीजिए, है ना, तो वो खेत से आ रही है, पसीना पसीना है, मैं गाड़ी से उतरी हूँ, हमारे भी एसी वाली गाड़ी नहीं होती थी, हम भी सिंपल गाड़ियों में जाते थे, हमें भी गर्मी लग रही होती थी, लेकिन उनको हमसे ज़्यादा लग रही होती थी कि धूप में पसीने भरोटा लेके आते हैं। वो आके बैठ के मेरे से कहेंगी कि मैं आपको हवा कर देती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भंवरी, तुम पहले पानी पी लो, है ना। नहीं जीजी आपको गर्मी लग रही होगी। मैंने कहा तेरे को देख कितना पसीना आ रहा है, हमें आदत है, आपको आदत नहीं है। आप इससे ये समझते हो कि इसकी एम्पैथी लेवल क्या है। आपने कितनी शादियां रुकवाई होंगी अब तक? चाइल्ड मैरिज गल्ला रुका दी, याद है नंबर से ना 8-10 रुका दी। और जब ये केस हो गया उसके बाद आपने अपना काम जारी रखा, उसके बाद भी शादियां रुकवाई? केस के बाद भी? केस का बारा में तो जहाँ को नुक्ता का बारा में ने छोटी तक की औरत का माल है ने, भूरण हत्या का माल है ने, बाप कहीं की ये नाता भेजे जे लुगाया ने, यहाँ दारू पीर महाराज जी का बारा में ने, सबका बारा में लड़ाई लड़ी जो खूब जमा, खूब साथ दियो तो मैया ने। A new wave of social consciousness among women's collective was underway. The 1980s was the decade of dowry murders of brides. The Sathin program became the center stage of awakening for rural women. The state's chief minister at that time, Bhairav Singh Shekhawat, issued a public appeal against child marriages. 9 महीना की बच्ची को कलेक्टर को साहब को आदेश दो, तो वो एक खयाक भाई 9 महीना की बच्ची की कोई छोटी बच्ची की उम्र में शादी न करे। तार बोली कि भौरी जी अब वो थड़े हमारा जा रही डेरे, पूछ लिया समाचार भाई कहीं हो कहीं नहीं हो कहीं हो। अब फलाना के ब्याह को छोड़ी, ऊँडी का के छोरी से 2 छोरियों को ब्याह कर रही है, तो ऊँड बता दी बात है। अब मन गया नहीं कौन मतीन पड़ी तो मन का ही मतलब, गाँव में जाऊँ तो कोई खे कौन मन। अब बातचीत बताई दे यार, कहते भौरी जी मैं क्या कहते तुम्हें गाँव में नहीं डोलती, मैं डोलू तो जी पर कोई टाइम टोलो तो कोई टाइम कौन जाओ, मन बताओ ही कौन कोई बात। कहते नहीं हूँ राम करने की छोरी की तो दोनों की शादी है। तो उम्र क्या थी दोनों की? एक तो 1 साल की, अरे एक की 10-12 साल की। लीपना माई शांति, अब शांति भाई लीपरी, अब शांति माई लीपरी दिन मैया खई, मैं माता जी काई कर रही है तो क्यों लीपरी है। तो कहते छोरिया को तड़का लगन जाओ। अब मैं सुन रही है भाई लगन जाओगे तो क्यों जाओ, चाल छोटी बच्ची की शादी मत करो। ये मैं कम से कम 2 लाख लगा होगा, 5 लाख लगा होगा, तो ये नहीं करो, ये का नाम को ट्रस्ट में पटक दो, चाहे वह खातो खोल दो, तो ये दूना जाओगा 10-15 वर्ष में, तो थे मत खोलो, मत करो ब्याह। अरे भैया का तुम्हारा तो नाक मुझ को सवाल थे, मैं कया कौन करूँ ब्याह भैया, देसी घी को माल बनाओ। तो भाई मैं कि देसी घी को माल पाछा बना दीजिए, पीसान में बन जाओ। कहते नहीं मैं तो छोरी कलर रोटी कलर मंडी के और छेक दूंगी। तो मुझे फिर जनो ही कहाँ ले बचो भाई, जनो ही कहाँ ले बचो, मैं गलत कही कि भाई जनो पैदा ही करो मत हो ना, रोटी कलर मंडी के छेको तो पैदा ही मत करो। फिर पासे बोले कहते नहीं भाई अब तो हैगी ये तो हैगी, पर मैं तो लहरे ही करांगा ब्याह। भाई लहर ऊपर वो छोरी रो रही बीमारी खूब बेचा, और छोटी छोरी थी ना 12 महीना की, अँ तो 9 महीना की थी, पर पाचे फिर ऊँडा सोचे जेवा बीमारी। भाभी जी मैं ले आऊँगा, ऊपर से बाई रो रही थी, कैसे लिया अब बाई हुआ चारों मेर फर यहाँ हाथन मुंडान टट्टी में सब सुंडा में थोड़ा तल दरवाना भी ठोर को। अरे मैं कहता उन्हें शर्म मारा जेठानी छोरी तो सुंदरी चे तू लीप रही चे, अँ बहुत सारा शर्म करो थे। पाछू उन्हें लड़ी में कहते कहीं करूँ, पाछू का यहाँ खपचा पकड़े
और फिर मैं हाथ धो लिया भाई कहीं उतरा था कन्या से तो जब फिर मैं वहीं उठा हाथ ने पकड़े और फिर उन्हें ले आई जब उन्हें दुफाई मैं भी मारा हाथ धोया उन्हें भी दुफाई पास बोलिया कैसे अब देख मैं कि नमटवा जी सुता कौन इनको ब्याह कर रहा था ना शर्म कौन आई भाई थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए उनको शास्त्र चलेगा फिर उनको दिन आया फेरा का दिन पुलिस आई जब फेरा का दिन जार से फिर फेरा का दिन पुलिस आ गई गद्दारी मंगाई थी पुलिस गद्दारी मंगाई थी गद्दारी बुलाई थी पुलिस भाई मैं तो कहीं बुलाई को नहीं सरकार को आदेश से कलेक्टर से जार बात करो मुझसे बात कर भाई कोई जरूरत को नहीं फिर पास उन्हें बुलाए बातचीत करी फिर सरपंच ने बुलाया सरपंच से बातचीत करी मैडमा से करी अब पास मैं ऊँड जा रहा है ना जब बदरी बैठी तो माँ मोटर में तो बोले खा नहीं साहब तो शादी तो है ही कोई हालत से करो तो भाई शादी गढ़ा में रख दो लगन ने और बाद में कर दीजिए खच नहीं माँ का नाक मुँह को सवाल तुम तब ही करा अच्छा बदरी कहीं खचे जीजी ने प्रीतम जीजी गई थी रोशन जीजी गई थी मैं गई थी पुलिस सही रोड माल पुलिस से माई को ठेठ करा था पुलिस आ गई गर्म जेब कर दी चलेगा तो मैं इसको लेकर मैंने यहाँ जब ये बात हुई कि भंवरी के साथ ही हुआ बैकलैश और मुझे अंदाज़ा था कि बैकलैश हो सकता है और किस हद तक जा सकता है और उन्होंने ओपन चैलेंज दिया। हमने उससे पहले गांव में मीटिंग रखी। मैं यहाँ से एडिशनल डायरेक्टर कोई मीणा थे जब उनको लेके गई कलेक्टर को कहा कि आप चलिए मीटिंग में हाँ मैंने कहा आप लोगों के सामने कहिए कन्फेस करिए कि हमने रुकवाई है ये शादी वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड ही नेवर केम। फिर हमने एडिशनल डायरेक्टर को लेकर गए मीणा को यहाँ से हाँ गांव में काफ़ी बड़ी मीटिंग करी। वो गुजर भी सब आए थे वहाँ पर मस्करे खड़े हुए थे सब मजाक कर रहे थे। भंवरी भी थी हम भी थे करीब 60-70-80 लोग होंगे जिनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में वो कहते हैं कि भंवरी यदि सच्ची है तो अपने बेटे के सिर पे हाथ रख के कह दे कि भाई हाँ मेरे साथ ये घटना हुई है। भंवरी ने अपने बेटे के सिर पे हाथ रख के कहा कि हाँ मेरे साथ ये घटना हुई और मैं झूठी हूँ तो मुझे यहाँ जिंदा जला देना। पूरी बड़ी मीटिंग में ये बात कही थी उसने। वाई भंवरी शुड सफ़र। तो भंवरी के ऊपर पूरा बैकलैश आ रहा है, सोशल बाइकाट हो गया है, सब कुछ हो गया। उसके बच्चों से कोई बात नहीं करता है, उसको कोई सामान नहीं देता है, वो आटा तक बाहर से पिसवा के लाती है। मतलब पैथेटिक सिचुएशन में चली गई, हद हो गई किसी चीज़ की। अदालत में सुनने वो भी अक्सर रोने लगते थे कि किस तरह की बात को जज कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी अनुसार फैसला भी दिया। उस फैसले में उन्होंने ये कहा कि भंवरी का जो सीमन था वो किसी से भी पांचों में से मैच नहीं किया और पति से भी मैच नहीं किया, तो वो किसका था। और इस तरह की भद्दी टिप्पणी करके बहुत मजाक किया लहजे में वहाँ पर उसको प्रस्तुत किया गया। दूसरी बात उस जज पे ये कही उन्होंने कि सवर्ण लोग जो हैं वो किसी नीची जात की महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकते,
गांव के सम्मानित लोग किसी महिला के साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते, जो चाचा भतीजे हैं वो एक औरत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये जो फैसला था वो उन्होंने कभी ये बात को देखने की कोशिश नहीं की कि भंवरी का बयान क्या था। गलत आरोप है सारा। कोई बाल विवाह नहीं था, 2 बच्चों की शादी थी। एक बच्ची की शादी रुका दी, एक बच्ची का फेरा कलेक्टर साहब आया था खुद यहाँ, प्रशासन आया था, फेरा देख के गया था। बस वही रंजिश से ले लोग बाग उन्हें बैठा यार हुआ, मेरी से नाराज थी। वार्ड पंची का चुनाव लगा था, मेरी से नाराज। तो रामकरण मेरा बड़ा भाई, मैं तो यहाँ गांव में ही नहीं था, बिल्कुल षड्यंत्र केस है। तो वहाँ भी विरी किया है हमको, तो कोर्ट हमारे साथ है, हमें बिल्कुल निर्दोष आदमी है। अब यहाँ जब जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट का जजमेंट आ गया जो उसके भंवरी के खिलाफ ही गया, तब हमने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि इसमें अपील में जाए, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता था कि रिवीजन से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। रिवीजन लग जाएगी, एडमिट हो जाएगी और हाई कोर्ट वापस रिव्यू करने के लिए वहीं भेजेगी। हम चाहते थे अपील। हमें 2-3 महीने तक काफ़ी चक्कर काटने पड़े, क्योंकि सरकार में बैठे लोग उसके खिलाफ अपील जाए, क्योंकि ये सीधी बात थी, वोट बैंक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, और वो उसको उस वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकते थे, उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते थे, चुनाव में फायदा लेना था। तो वो, लेकिन जो उस समय लॉ सेक्रेटरी थे, उन्होंने फाइल मंगवा करके और मुझे दिखा दिया कि देखिए मैडम, मंत्री जी का इस फाइल पे नो अपील लिखा हुआ है। A wave of protest hit India. Women hit the streets demanding justice for Bhavri Devi. The protests became so loud that the national and international press was forced to take notice of it. Sathins rose against the treatment that was meted out to Bhavri and raised slogans such as "Pehle Bhavri ko nyay do, fir gaon mein kaam lo." India Today magazine wrote, "The second sex awakens." वो न कोई और सा मारा मटका ले जा, वो न मोने बाणिया लूण तेल दे, वो काई को लवान से ले रहा हुआ था, पानी को बर्बाद दे जा। पाछे निशा जी थे न, जे निशा जी थे जी, फिर मारे खने आ और फिर मैं खई सब मन पानी को पीवा दे, काई पिया मैं पानी बोले। Bhavri's journey as a Sathin came to an end in 2021. She started with a salary of 200 rupees and retired at 3,000. Meanwhile, the Rajasthan government halted the progress of the Sathin program. Funds shrank and were diverted to other programs. Today, Bhavri is consumed by the family dispute and the theatre it has turned into. मेरे मन में एक ये था कि भंवरी की लीडरशिप में वहाँ कुछ यंग लड़के लड़कियाँ काम करते और एक सेंटर बनता जो उस इलाके में बनता, और उस लेगेसी के साथ वो अब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट इधर उधर छितरा पितरा कुछ भंवरी का नाम लेता है, यहाँ वो कानून बन गया। मुझे उससे ज़्यादा लगता है कि उस रूट लेवल पर क्या होता वहाँ पर। वो दिल्ली में तो जो वो लड़ी थी ना, नौजवान लड़कियाँ, उनका बारे में नाच खेल कूद के बारे में लड़कियाँ धरनों दियो सो कौन है, तो वहाँ भी कौन न्याय मिले तो वहाँ है खिलाड़ी, तो वहाँ भी क्यों न्याय दियो ना सरकार, वह क्या गलत सो उन्हें सजा मिलती खूब। मैं जो महसूस करती हूँ कि बाकी सभी क्षेत्र में विकास किया, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन रिवर्स ड्रास्टिकली जो कहती हूँ मैं कि डिक्लाइन हो रहा है, वो महिला की सुरक्षा डिक्लाइन हो रही है। अमृत महोत्सव में, आज़ादी का अमृत महोत्सव में औरत की आज़ादी को छिन्न भिन्न कर रहे हो, और ये जो जिस तरह से छोड़ा वो महिलाओं में डर पैदा करने के लिए कि आगे से भी कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही हम करेंगे। हमारा साथ में न करेगा न्याय मत करो, पर आम औरतां तो न्याय देना चाहिए ना,
वहाँ का ताई लड़ रही थी, मैं का मारे अकेली का ताई थोड़ी लड़ रही थी, पूरी जनता का ताई लड़ी थी, पूरे देश विदेश का ताई लड़ रही थी। यह अत्रो अत्याचार है रही जो क्यों है रही ये अत्याचार न रोक क्यों सरकार। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो वेने आती है, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो वेने आती है, आएगी जुल्म मिटाएगी वो तो नया जमा लाए।